Hello students, welcome to Little Bird English School. I myself Yogesh Rathod. So today we are doing science chapter number 6. The name of the chapter is tissues. Correct? So listen carefully. In the first period we will do introduction. From the last chapter we recall that all living organisms are made up of cell. ठीक है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल का बना होता है, जैसे अमोबा. फॉर एग्जांपल, इन अमोबा अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड respiratory and excretion. But in multicellular organism there are millions of cells. Most of these cells are specified to carry out a few functions. Each specialized function is taken up by different group of cells. Since these cells carried out only a particular function, they do it very efficiently. In human being, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages, blood flow to transport oxygen, food, hormones, and waste material, and so on. In plant, vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other part. So multicellular organism shows division of labor. Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body, and the cluster of cells called a tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function. Blood, phloem, and muscles are all example of tissue. A group of cells that are similar in structure and are of work together to achieve a particular function forms a tissue. बेसिक में क्या बताया आपको, मेन बातें तीन बताइए. क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल होता है वो सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म करता है, जैसे अमोबा का एग्जांपल दिया आपको. ठीक है, वही खाना खुद पकाता है, खुद ही सब कुछ करता है. फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसके अंदर हर सेल का अलग अलग काम होता है और हर सेल अपना अलग काम करता है. जैसे ह्यूमन बींग्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, उनका एग्जांपल आपको दिया. ठीक है, मसल सेल का एग्जांपल दिया कि वो अपना अलग काम करता है, हार्मोन्स अलग काम करते हैं, सब सेल्स अपने अपने अलग काम करते हैं. प्लांट है वो अपना, उसमें जो सेल्स होते हैं वो अपना अलग काम करता है. सो दिस इज़ विथ रिगार्ड टू द इंट्रोडक्शन डेट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर नंबर 5. Now first topic 6.1, are plant and animals made up of same type of tissue? Let us compare their structure and function. Do plant and animal have the same structure? Do they perform similar function? So there are noticeable difference between the two. Plant are stationary or fixed. आप समझो, प्लांट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है. उसको एक ही जगह पे रख सकते, बार बार दूसरी जगह जा नहीं सकता, वो एक जगह लग गया सो लग गया. दे डू नॉट मूव. मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव. उसके जो टिश्यू होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, विच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू आर Most of these tissue are supportive, which provides them with structural strength. Most of these tissue are dead, since dead cell can provide mechanical strength as easily as live ones and need less maintenance. ठीक है, तो प्लांट में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल होते हैं. ठीक है, और जिसको मेंटेनेंस कम लगता है. एनिमल ऑन द अदर हैंड्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मीट्स एंड शेल्टर. They consume more energy as compared to plant. Most of this tissue contain are living. Another difference between animal and plant is in the pattern of growth. The growth in plant is limited to certain region, while this is not in animal. There are some tissue in plant that divides throughout their life. These tissue are localized in certain region. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. Cell growth in animal is more uniform. जो एनिमल में ग्रोथ होते हैं सेल वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं. सो दैट देयर इज़ नो सच ड्रामेटिक ऑफ डिवीजन, डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी होते रहते हैं. The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major group of organism, particularly in the different feeding method. Also, they are differently adapted for the sedentary existence on one hand plant and active location on the other animal. Contribute to the difference in organ system design. It is with reference to this complex animal and plant body that we will now
टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। अब ये बात थी कि भाई क्या प्लांट और एनिमल में सेम प्रकार का टिश्यू होते हैं, तो हमने देखा कि भाई प्लांट अलग चीज़ है, एनिमल अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द टिश्यू इन प्लांट एंड एनिमल। अब आ रहा है अलग अलग प्रकार के टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कौन से टिश्यू होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कौन से प्रकार के टिश्यू होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्लांट टिश्यू। डेट इज़ नंबर 1, जो पहला टिश्यू हम पढ़ेंगे डेट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप देखो जार जिसमें ऑनियन डाला हुआ है उल्टा। ग्रोथ ऑफ रूट्स इन ऑनियन बल्ब, उसका जो रूट है वो किस तरह ग्रोथ होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेक 2 ग्लास जार एंड फिल इट विथ वाटर, ठीक है। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर 6.1। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज। दोनों का ऑब्जर्व करो आप ग्रोथ ऑफ बल्ब फॉर फ्यू डेज। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1, डे 2 एंड डे 3 एंड ऑन डे 4 कट द रूट टिप। टिप यानी उसका जो ऊपर से काट देना है रूट की टिप को, ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 बाय 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपको ऑनियन 2 का जो टिप है, रूट का टिप है, वो काट देना है केवल 1 सेंटीमीटर का। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार एंड मेजर द लेंथ ईच डे फॉर 5 more days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल लाइक द टेबल बिलो। क्या ऑब्जर्वेशन आप पाओगे अगर उसका आपने टिप काट दिया होगा, तो आप देखोगे कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफाई रीजन। कुछ कुछ रीजन में ही ग्रोथ हुआ है, ठीक है, प्लांट का। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग द टिश्यू एज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इसके लिए मुमकिन हुआ बिकॉज आपने डिवाइड कर दिया टिश्यू को, जिसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाई एज एपिकल, lateral and intercarical. New cells produced by meristematic are initially like those of meristematic itself, but as they grow and mature the characteristic slowly changes and they become differentiated as component of other tissue. देखो यहाँ पे आपको ये लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी दिया हुआ है। ये इंटरकैरियरी मेरिस्टेमिक है, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, और जो नीचे का पोर्शन होता है डेट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो अब देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। ये ग्रोइंग टिप यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, और उसको बढ़ा देता है रूट की। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। गिर्थ या रूट उसका बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेमेटिक। इंटरकैरियल मेरिस्टेमेटिक इज द मेरिस्टेमेटिक एट द बेस ऑफ द लीव, और इंटरकैरिकली होती है और बेस ऑफ द लीव्स होता है, और इंटरनोड ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड और ट्विंग्स। As the cell of the tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can you think why they would lack vacuoles? You might want to refer to the function of vacuoles in a chapter on cells. Then number 2 is permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, डेट वी विल लर्न इन नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।